हम उधर जाके आपको अप्रिशिएट करते हैं। आगे फर्दर क्वेरीज भेजते हैं, पूछो पूछो। स्टार्ट कर। मैं भी जाके लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। इसका लिंक दे दो, मेरे को दे दो। और आपको कैसे निकला? अपने फोन से भी मैम स्टेटस डाल दो। अरे लिंक डालो। Hello everyone, I am Dr. Preeti Yadav, practicing in Gurgaon, Sector 57 at my own center with the name konarcaesthetics. As we decided today, we are going to talk about scar management. What is scar, how it forms, what can we do, use it, and if it has formed, what can be done to manage this scar. So, we talk about how scar forms. Whenever there is a cut, it goes under different stages of healing. These are inflammation, inflammation, proliferation, and remodeling. So during the phase of remodeling, there will be fibroblasts, and this fibroblast is mainly responsible for scar formation. So this fibroblast cause fibrosis, also collagen production, and so on. And after that, remodeling phase will start, and this remodeling phase will continue for next 1 year. So this scar remodeling scar remodeling keeps on happening for next 1 year, and this remodeling helps in improvement of scar appearances. So that's why we as plastic surgeons always recommend you want to undergo scar remodeling, at least wait for 1 year. So now, what is scar? Basically, scar is final stage of healing, and this is inelastic brittle structure which is lacking of any skin appendices, right? Sebaceous and sweat. So how we can manage? So first of all, how these scars can be reduced? Like if you are dealing with some cut or any injury, how you will repair that cut or injury so that scars will be less in number. So this management will be like using atraumatic technique to repair the scar. There should be multiple layer closure. There should be minimal handling of tissue, and also there will be, if possible, scar should be in natural skin creases, and this natural skin creases is called lasertreatment. So these are different ways of repairing the incision to reduce the ultimate scar formation. Now, there can be different types of scar, and on the basis of their etiology and how they look, their management differ.
it's not like every scar have same treatment. Different scars, different management is there. So scar can be hyperpigmented, can be hyperpigmented. They can be hypertrophic or keloid formation, or they can be atrophic. So different scars. So we'll be discussing how we can manage these scars. First of all, we'll discuss surgical management, and then we'll go to medical management. What are different options of surgical management of scar? Yes, first and foremost is scar revision. What is scar revision? If patient is coming with scar and that scar is big and size is small, so if it's possible to cut out the whole scar and close the nearby adjacent skin, then scar revision is best for. What we do in scar revision, as I have already discussed, जो भी हम during primary closure जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो scar revision में भी ध्यान रखते हैं. So it should be atraumatic, it should be there should not be any tension, it should be layered closure, skin erosion should be there, perfect position should be there, and also this management of these things should be taken care of during scar revision surgery also. So during scar revision, yes, we use finest possible sutures so that जो sutures और stitches का marks आएगा वो भी कम आएगा. So now this is scar revision, but sometimes what happens कि जो scar है वो atrophic तो है, depressed भी है, but scar इतना नहीं है कि हम उसको in one go निकाल दें. In that case, we can go for serial excision. Serial excision is nothing but scar revision, but इसमें हम stages में करते हैं. So अगर आपका जो scar, let's say मेरे यहाँ पर कोई scar है और मैंने इसको exercise किया, तो अगर मैंने इसको exercise किया and exercise करने से पूरा exercise करने से जो adjacent anatomical structure है वो distort हो गया. In that case, don't go in one sitting. Stage the procedure, and this is called serial excision. This serial excision, after serial excision, what can be other options is jetplasty. Jetplasty is way of scar repairing. In this case, rather than a linear long scar, we give it in breaks. We break the scar. This is called jetplasty. So jetplasty के प्रिंसिपल में एक चीज़ और होती है, जो सराउंडिंग टिश्यू होता है वो भी स्कार, जो सराउंडिंग टिश्यू होता है वो भी लेंथनिंग में हेल्प करता है. सो बेसिकली जो jetplasty होती है, एक तो आपके स्कार को ब्रेक कर रही है, जो उसकी लिनियरिटी है उसको ब्रेक कर रही है, दूसरा इसमें आप जो सराउंडिंग टिश्यू है उसका भी हेल्प ले रहे हैं टू हेल्प योर स्कार्स. Third option is subcision and fat grafting. What is subcision and fat grafting? In that case, subcision and fat grafting, अगर आपका स्कार अंडरलाइन टिश्यू से चिपका हुआ है, in that case आप एक प्लेन नहीं बना पा रहे हैं, will subcise the underlying tissue. This is subcision. And other is fat grafting. In that case, will be using your own fat, will be processing that fat, और उसको जो हमने स्पेस बना लिया है, दिस इज स्कार, दिस इज अंडरलाइन टिश्यू, और ये जो हमने रिलीज करके स्पेस बना लिया है, इस स्पेस में हम फैट को इंजेक्ट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फैट ग्राफ्टिंग और माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग. अनदर ऑप्शन इज नैनो फैट ग्राफ्टिंग. सो नैनो फैट ग्राफ्टिंग विल बी helping you in skin resurfacing also. So स्ट्रक्चरल फैट ग्राफ्टिंग एंड नैनो फैट ग्राफ्टिंग हम कॉम्बिनेशन में भी करते हैं. कभी कभार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वी डोंट वांट टू गो फॉर फैट ग्राफ्टिंग, और मुझे थोड़ा डॉक्टर आई एम अफ्रेड ऑफ अंडरगोइंग फैट ग्राफ्टिंग. तो इन दैट केस अगर वो छोटा स्कार है वी कैन गो फिलर्स ऑल्सो. सो विल बी डूइंग सबसिजन, और सबसिजन का जो स्पेस बनेगा उसमें हम फिलर्स, डर्मल फिलर्स को यूज करेंगे. सो देयर आर सम क्वेश्चंस. निप्पल्स पे स्कार आ सकते हैं इन गायनेकोमास्टिया सर्जरी. स्पेनिंग का एक क्वेश्चन है. स्पेनिंग सी जो हमारा गायनेकोमास्टिया रिपेयर करते हैं हम, तो जो स्कार आता है
बेसिकली गैनिक्वेस्टिया में हम वी आर गोइंग फॉर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्ससीजन, और जो स्कार आता है ग्लैंड एक्ससीजन पे, वो जो हम एक्ससीजन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट लाइक 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हम एक्ससीजन, एक के अराउंड 1 सेंटीमीटर एक्ससीजन, और वो भी जो निपल एरिया को डार्कर और लाइटर जंक्शन पे, और एनाटॉमिकली भी आपका विजिबल नहीं होता है। दूसरा, उसको फर्दर फेड करने के लिए हम आपको और मेडिसिन दें। सो इस लाइक गैनिक्वेस्टिया सर्जरी में आफ्टर 6 मंथ आप बता भी नहीं सकते कि हमें इंसिजन किया गया था कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a short time. It's been 5 years now, and the scar is elevated, hard, and hurts when pressed. It's been long, worried, advise me some tips. So, it's like जो आपकी कंप्लेंट्स है उनको देख के लग रहा है कि इससे हाइपरट्रोफिक स्कार, हम इस पे आएंगे कि हाइपरट्रोफिक स्कार का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक बार हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर ले, तो मैंने आपको अभी बताया कि स्कार रिविजन को हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं और इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने स्कार रिविजन, सीरियल एक्सीजन, जेड प्लास्टिक, फैट ग्राफ्टिंग, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर लेट्स से अगर बहुत बड़ा पार्ट आपका बॉडी का इसका बर्न हो गया है, हाफ ऑफ फेस इन्वॉल्व हो गया है, या फिर ट्रोमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिससे सिग्निफिकेंट साइज आपका इन्वॉल्व हो गया, जिसे आप ना एक्सरसाइज कर सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग करने से एट्रोफिक स्कार से उसमें तो हेल्प मिल जाएगी, पर अगर वो एट्रोफिक भी नहीं है और यू डोंट वांट स्कार्स, तो उसका एक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है अवेलेबल है, दैट इज एक्सपेंडर्स। एक्सपेंडर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपेंडर्स जो आपका जहाँ पर भी स्कार है, जैसे आपका यहाँ स्कार है, तो हम आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल स्किन है उसके नीचे एक एक्सपेंडर डालते हैं, इससे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और उसे ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ फिल करते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरलाइंग स्किन है वो एक्सपेंड करती है। और जब ये स्किन एक बार एक्सपेंड हो जाती है तो जो हम स्कार टिश्यू है उसको निकाल देते हैं, और ये जो एक्सपेंडेड स्किन है उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो वी आर रिप्लेसिंग स्कार टिश्यू विद एक्सपेंडेड नॉर्मल स्किन। इसकी वजह से जो स्कार लाइन आएगा वो एक पतला लाइन आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ऑफकोर्स अगर स्कार छोटा तो उसमें इसके नहीं। दूसरा, अगर स्कार बड़ा भी है तो इस माइंड की आपका जो सराउंडिंग स्किन है उसमें हम एक एक्सपेंडर डालेंगे, वो ओवर 3 to 4 मंथ्स आपकी स्किन के अंडर रहेगा। तो ये आपको एक अपने जब भी आप इसके लिए एक्सपेंडर के बारे में सोचें तो ये एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि वो 3-4 मंथ्स के लिए यहाँ पर आपके रहेगा, वो दिखाई देगा, तभी तो आपकी स्किन एक्सपेंड होगी। बट बिलीव मी, बिकॉज ये जो इस चीज़ से एक्सपेंडेड स्किन है वो एक नॉर्मल स्किन है, जो स्कार है उसके बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स जो स्कार आपका बिल्कुल हमने कट करके निकाल ही देंगे, उसको स्कार बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ टाके आएंगे वो एक फाइन लाइन जरूर। रिजल्ट्स आर वेरी गुड द एक्सपेंडर्स, बट यस एक्सपेंडर्स की भी अपनी लिमिटेशन है। तो अगर स्कार बहुत बड़ा है या बॉडी पार्ट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा इन्वॉल्व कर रहा है तो एक्सपेंडर्स को भी हम स्टेज करें। तो ये सब कुछ है सर्जिकल मैनेजमेंट, बट सर्जिकल मैनेजमेंट आर नॉट दी मैनेजमेंट पॉसिबल फॉर स्कार्स, देयर आर मेनी नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसे मार्केट में हाइप भी किया हुआ है कि दीज थिंग्स आर गुड एंड इफेक्टिव, जो इतना इफेक्टिव होती नहीं है एक्चुअली। सो लेट्स डिस्कस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if I have hesitation marks since 6 years, can it be removed and what will be the cost? So depend करता है कि hesitation marks कैसे आप, या वो स्प्रेड कर गए हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में ही हैं या कितने बड़े हैं। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर ये एट्रोफाइड हो गए और काफ़ी स्प्रेड हो गए हैं तो हम इसको एक्सरसाइज करके थिन लाइन बना सकते हैं और उस थिन लाइन की रीसर्फेसिंग करते हैं, फिर बाद में CO2 लेजर से।
ठीक है, अब आते हैं नॉन सर्जिकल। जैसे ही इवन मेरे जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उसमें भी मैंने ये एजेंटिव ट्रीटमेंट्स देती हूँ। AW10 क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है सिलिकन। सिलिकन इज क्वाइट हेल्थ, और जो सिलिकन होता है ये आपको एक बार जैसे ही आपके स्टिचेस निकल गए उसके बाद आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स तक आप यूज़ करें। और सिलिकन से हम आपको मसाज भी करेंगे, तो ये दोनों फायदे कर रहे हैं, मसाज भी आपकी हो रही है साथ में सिलिकन की भी फायदे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप मसाज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, साथ में जो हाइपरट्रोफिक की टेंडेंसी होती है वो भी रिड्यूस हो रही है, और सिलिकन की वजह से इटसेल्फ जो मॉइस्चराइजेशन वगैरह मिल रहा है वो भी फायदेमंद है। तो वन इज सिलिकन, सेकेंड इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज क्वाइट इफेक्टिव। सनस्क्रीन आपको यूज करनी ही करनी है, क्योंकि अभी जब मैंने आपको पहले बताया कि जो स्कार का हीलिंग टाइम होता है वो नेक्स्ट 1 ईयर तक है। इस टाइम पे अगर सन एक्सपोजर होगा तो आपकी स्किन की टेंडेंसी रहेगी हाइपरपिगमेंटेशन की तरफ। तो यस, सनस्क्रीन इज क्वाइट इफेक्टिव। और दूसरा, हाइपरपिगमेंटेशन यूजुअली डार्क स्किन पीपल में होता है, या लाइट स्किन पीपल जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में रहते हैं उसमें हाइपरपिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब एक बार हाइपरपिगमेंटेशन हो गया तो अगर आपका स्कार छोटा भी है, थोड़ा सा भी है, वो भी अच्छा नहीं लगता, तो सनस्क्रीन आपको बिल्कुल यूज़ करना है। थर्ड इज लेजर। लेजर्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसमें वो CO2 लेजर यूज़ करते हैं। CO2 लेजर क्या काम करते हैं? CO2 लेजर बेसिकली आपका जो भी स्कार है उसकी रीसर्फेसिंग। स्कार में पर से इतना नहीं है कि हम इसको सर्जिकल मैनेजमेंट को रिप्लेस कर सकें CO2 लेजर, लेकिन कुछ जब पेशेंट्स आते हैं जिनका स्कार जिनके स्कार की जिनको सिर्फ रीसर्फेसिंग की जरूरत है, कभी कभार पोस्ट एक्ने स्कार्स भी ऐसे होते हैं। यूजुअली एक्ने स्कार्स जो डीप में होते हैं उस केस में हम फिर उसके अंदर केमिकल फ्री इंसर्ट। बट अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ना एट्रोफिक है ना डीप स्कार्स है, वो सरफेस पे है और आपकी स्किन को सिर्फ रीसर्फेसिंग चाहिए, तो CO2 बहुत अच्छा ऑप्शन है इन दोज केसेस। इवन तो मेरे जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उसमें भी मैं आफ्टर सर्जरी CO2 लेजर रिकमेंड, तो आपको CO2 लेजर की एटलीस्ट 3 to 4 सेशन ले। तो CO2 लेजर बेसिकली क्या करता है, CO2 लेजर से नेगेटिव वहाँ से हीलिंग स्टार्ट होती है। ये जो रीसर्फेसिंग का काम है बहुत अच्छा होता है। ओके, देयर आर सम मोर क्वेश्चन। अच्छा चलो एक दो चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस कर लेती हूँ। और क्या हो सकता है? वन इज स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा स्कार है वो मोबाइल पार्ट पे है, जैसे मेरे यहाँ पे स्कार है, स्कार को मैंने किया, अब अगर ये मूव होता रहेगा चांसेस है कि स्प्रेड, तो हम सलाह देते हैं स्प्लिंटिंग से। और नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप सिर्फ छोटे से स्कार रिवाइज करने के बाद एक स्प्लिंट करना। तो अगर डे टाइम में अगर रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हैं वेल एंड, अदरवाइज हम नाइट टाइम स्प्लिंट करते हैं। तो आप नाइट टाइम में स्प्लिंटिंग कीजिए और डे टाइम में जितना मूवमेंट कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज प्रेशर। If your scar is going towards hypersensitivity, so pressure garment is quite. Pressure garment से क्या है? Pressure उसमें मिलते हैं जिससे कि आपका scar elevate हो। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक ऑप्शन है क्या, वो है स्टीरॉइड। तो व्हाट इज स्टीरॉइड्स? स्टीरॉइड्स बेसिकली आपका जो प्रोलिफरेशन है इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आपका हाइपरट्रोफिक स्कार है, किलोइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल किलोइड और हाइपरट्रोफिक स्कार में क्या डिफरेंस होता है? हाइपरट्रोफिक स्कार एक एलिवेटेड स्कार है लेकिन वो विद इन द बाउंड्री ऑफ सिक्शन है, क्रोमोसोम। किलोइड है वो एलिवेटेड है स्कार
दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, वन इज स्टीरॉइड. वी यूज टू इंजेक्ट इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स. जो ये इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स होते हैं ये एट द लेवल ऑफ 3 वीक्स के से जो आपका स्कार का एलिवेशन है वो कम हो जाता है. साथ ही साथ जो ये सिम्टम्स होते हैं पेन, इचिंग, उनको भी कंट्रोल करता है. तो बेसिकली पेन एंड इचिंग है वो मास्ट सेल से है. ये मास्ट सेल्स जो है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन रिलीज होती है. बस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो कंट्रोल कर रहा है. इन टाइम जो सिम्टम्स है वो भी रिड्यूस कर. And you can expect up to 60 to 70% reduction of symptoms as well as elevation. Sometimes अगर keloid long standing है और simple और steroid से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम साथ में 5-FU भी कंबाइन करेंगे. 5-FU जो है ये सीधा ही इसको हम कॉम्बिनेशन में अलॉन्ग विथ स्टेरॉइड यूज करते हैं फॉर स्कार्स एंड केलोइड्स. कैन वी रिवाइज दिस केलोइड्स और डिपेंड्स. तो अगर हम एज पर बुक्स जाएं तो सेड दैट अगर आप केलोइड या स्कार को निकालते हैं चांसेस है कि 50% चांसेस है कि वो रिकरेंस हुए. तो व्हाट वी डू इज कि हम एक बार जो केलोइड है और जो उसके मार्जिन्स है एक बार सुचर्स करने के बाद ऑब्वियसली जो इंसिजन होगा वो इंट्रालीजनल इंसिजन होता है. इसके बाहर सर्फेस पे हम क्लोज कर देते हैं और आगे 2 to 3 वीक्स इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन. तो हम ऑब्वियसली जो एलिवेटेड पार्ट है वो हमने निकाल दिया और जो फ्यूचर में इसका फिर से एलिवेशन होने के चांसेस है उसको भी कंट्रोल. आपको इसका अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है. यस ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि सो फॉर केलोइड्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद 5-FU और इंट्रालीजनल एक्सिजन ऑफ द केलोइड followed by steroid injection. These are different options for keloid and hypertrophic scars. So अभी हम questions लेते हैं. I'm suffering on my breast. I took several steroid injection but now it's too itchy. Is there any other treatment? So मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप स्टेरॉइड ले चुके हैं तो आप अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल वो होगा स्टेरॉइड प्लस 5-FU. और एक बार एग्जामिन करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जो लोकलाइज्ड है छोटा एक्सरसाइज का है और इंटरनेशनल एक्सरसाइज भी. कभी क्या होता है ये जो स्कार्स होते हैं जो स्कार्स होते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बॉडी इन्वॉल्व. अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इसमें भी हम एक्सपेंडर्स का यूज कर सकते हैं. विल एक्सपेंड द सराउंडिंग्स की हाइपरट्रोफिक स्कार जो एक्सपेंडेड स्किन है उससे कवर. यस जो इंसिजन लाइन रहेगी उसकी फिर से टेंडेंसी रहेगी टुवर्ड्स हाइपरट्रोफिक स्कार. उस केस में हमें ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम विजिट करना है. अगर हमें लगता है तो हम आपको steroid injections. So hypertrophic scars and keloids are very nice to deal with, but ऐसा नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट अब yes treatment options are. Next question is I have been massive on my arms and on my face and chest that leave very dark scars, making me unable. there any solution? Yes, there are. अच्छा मैं आपको एक लेजर से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है किसी को लेजर सर FAENDR लेजर है वो जो हम लेजर करते हैं जो पिगमेंटेड स्कार्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है. तो इस केस में हमारे पास एक केमिकल पील का ऑप्शन रहेगा, लेजर्स का ट्रीटमेंट ऑप्शन करता है और कुछ हम आपको हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन
हैं जिसमें जो हाइपर बेसिकली रेटिनोल होता है, कोजिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है और सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें हम आपको इन क्लिनिक में ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट जो आपको करते हैं. So combination of treatments are quite effective in such type of scars. Next question: is there any pain or side effects? So पेन ऑफ कोर्स होता है सीटी लेजर में, इसलिए हमेशा हम इसमें जो स्किन होती है उसको नम करने के बाद ही लेजर्स को. यस एंड फर्स्ट से इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसका साइड इफेक्ट पेन ही होती है. तो पेन को हम कंट्रोल करने के लिए नम सिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव सीन कोल्ड हाइपरटोनिक स्कार एंड nail scars. What will be the best procedure? So, जो स्कार है उसमें ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा स्टीरॉइड्स, लेजर सबको क्वाइट इफेक्टिव स्कार एंड इफ पॉसिबल सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो होती है ये काफ़ी स्कार मैनेजमेंट जो होता है ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आप स्कार ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ होता है. और दूसरा आपको टाइम टू टाइम विजिट करना स्कार एंड सम स्कार्स आर वेरी नोटोरियस टू बी. और किसी भी स्कार में जो फर्स्ट क्वेश्चन आके मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये 100% करेक्ट हो जाएगा क्या, मेरा 100% हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. 100% कभी भी पॉसिबल नहीं है. यस वी कैन इम्प्रूव योर स्कार्स. यस जो पहले से काफ़ी बेटर हो जाता है. 100% इज नॉट. दूसरा जो पेशेंट्स आते हैं ये कुछ स्कार हो गया कि आप प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए, और उनके मन में परसेप्शन ये होता है कि प्लास्टिक सर्जरी कर दिया तो अब ये 100%. प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली स्कार को करने के अपीयरेंस को बेटर करने के लिए 100% रिमूवल विद प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट. इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव वेरी डीप बर्न्स नाउ, कैन इट बी? Yes, deep scars are usually atopic scars. Atopic scars होते हैं. If possible, can go for scar revision. अगर possible नहीं है, पूरा को पूरा involved है या musician को involved है, that case scar revision is not possible. Those cases we can go for PET grafting. So PET grafting से क्या होगा? बेसिकली जो डीप स्कार है वो की डेप्थ को कंट्रोल कर लेंगे हम, साथ ही साथ हम नैनोफाइट जो डालेंगे उससे रीसर्फेसिंग भी जो स्कार का लुक है वो बेटर हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है. बेसिकली ऐसा आई टोल्ड यू कि कोई भी स्कार ऐसा नहीं है कि 100% हम बोले कि ट्रीटमेंट कर लीजिए आप, ये एक ट्रीटमेंट ये सब कुछ कंट्रोल वो इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन होते हैं. डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. वन ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट कभी भी इफेक्टिव नहीं होएगा. वो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना बेटर है फॉर स्कार मैनेजमेंट है. कि स्कार्स का जितना एक प्लास्टिक सर्जन को पता होता है आई डोंट थिंक किसी और को पता. रेजिडेंसी में हमें जीवन से यही बताया जाता है कि स्कार्स को कैसे मैनेज करना है, स्कार्स को कम से कम कैसे करना. इवन तो जब हम सूचर्स लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तब भी हमारी टेंडेंसी स्कार्स हमारे एक वेल लाइन जो बताएगी. इवन तो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सूचरिंग स्टिचिंग टेक्निक और जो भी मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए शुड बी
और टेंशन लेस होना चाहिए, सब कुछ हमने किया। सेम टेक्निक 2 डिफरेंट पेशेंट्स में और दोनों में रिजल्ट जो है डिफरेंट आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट फैक्टर्स पर भी डिपेंड है। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा, आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री फॉर स्कार्स, स्कार्स है, आपका आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह इंजेक्ट दे तो नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर आप कोई ऐसा बॉडी पार्ट कौन सा इन्वॉल्व है या नहीं है, या फिर स्कार्स आपकी डायबिटीज तो नहीं है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेटस तो नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर कैसा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिपेंड करता है फाइनल स्कार कैसा है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निक मैटर करती है, आपके बहुत सारे पेशेंट फैक्टर भी सारे ऐसे होते हैं जो मैटर करते हैं ड्यूरिंग स्कार। Even same scar can have different result in different patients, even if we go for same treatment for the patients. So ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि स्कार मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। स्कार मैनेजमेंट सर्जिकली भी हो सकते हैं, सर्जिकली भी हो सकते हैं। अब वो इसमें क्या ऑप्ट करना है, कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, वो हम एग्जामिनेशन के बाद ही बता पाते हैं। सो यस, go for plastic surgeons for your scar management because we know scar in and out and we are dealing scars on daily basis. So if you have any other query regarding scars, I'll be happy to answer them. अगर आपका और भी कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क दैट इन chat box or you can contact us on 8100600400. I am practicing at konarcaesthetics, sector 57 Gurgaon. So ये सब कुछ था हमारा स्कार्फ के, एंड from now on sorry from now on I'll try कि मैं every Friday लाइव आऊँ और आपसे एक किसी भी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ। तो ये बेसिकली ये जो लाइव सेशंस होंगे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है एग्जैक्ट प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है ये नहीं पता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता है, इवन मेडिकल फैटर्निटी में भी आधे लोगों को नहीं पता है कि प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली होता है। सो जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस आई विल बी कवरिंग वन टॉपिक एवरी फ्राइडे। सो आज का मेरा टॉपिक था स्कार मैनेजमेंट पे था। नेक्स्ट आई विल बी डीलिंग विद एब्डोमिनल लाइपोसक्शन। सो कीप योर क्वेश्चंस रेडी, जो भी आपके डाउट्स होंगे विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू। एंड कर दो। सब